अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस लेक्चर 4 में कंप्यूटिंग पैराडाइम्स एंड न्यू कंप्यूटिंग पैराडाइम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटिंग पैराडाइम्स पहले तो होते क्या है, दूसरे उसके टाइप्स क्या है, और तीसरे न्यू जो कंप्यूटिंग पैराडाइम्स है वो क्या है। तो आई एम मंसूर सर, स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस स्टडिंग एट गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, and you can connect with me on GitHub, YouTube, Facebook, Insta, accordingly. So first of all, I have to change the marker. So I hope this will be right. Yeah, this is right. So let's jump to the topic. What first of all, हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटिंग पैराडाइम का मतलब क्या है। तो अगर आप ने पिछले लेक्चर तीन लेक्चर को नहीं देखा तो आई होप that you will not don't know that what does computing paradigm mean. But if you have watched the lectures, so definitely you should to know. Of, and did you must know that what does computing paradigm mean, as we have touched it in previous lectures. But computing paradigms, we will touch it here too. So, computing paradigm in cloud computing refer to different architectural model and service delivery methods that enable on-demand access to shared resources over the internet. सिंपल इसका मतलब ये है कि वो मुख्तलिफ मॉडल्स सही जो सर्विस डिलीवरी मेथड ओके या एक सर्विस को जो एक सर्विस को प्रोवाइड करते हैं सही। ये एक मॉडल जो एक सर्विस को प्रोवाइड करते हैं सही। और ये इनेबल होता है एक नेटवर्क के थ्रू और एक मैसेज के थ्रू ये एक्टिवेट होता है और एक यूजर इसके साथ कम्युनिकेट या कोलेबोरेट कर सकता है सही। तो ये है कंप्यूटिंग पैराडाइम। नाउ computing paradigms types are centralized, distributed, and parallel computing. So I hope that you will know that what does distributed parallel means. But of course we will touch here too. But for the centralized computing and centralized systems, one or more client nodes are directly connected to a central server. Okay, what one or more client nodes is directly connected to a server, a network. Okay, so you can now understand this, say that these are the client nodes. Okay, and these, okay, yes, these are the client nodes and this is the server. Okay, so what for hence these system are called client server system सही। इसका मतलब यही है कि सर्वर दरमियान में होगा सही, और उसके जो क्लाइंट्स है वो मुख्तलिफ पार्ट्स में एक नेटवर्क में होंगे सही। और इस वो नेटवर्क इस सर्वर को एक्सेस करेंगे और या तो कुछ डाउनलोड करेंगे या तो कुछ अपलोड करेंगे सही। जिस इस मॉडल को क्लाइंट सर्वर सिस्टम या मॉडल भी कहा जाता है। क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू सर्वर एंड रिसीव्स द रिस्पांस। क्लाइंट, ये क्लाइंट है, ये मैसेज को सेंड करता है सही। इस मैसेज को सेंड करता है और इसको रिस्पांस मिलता है किस सर्वर की तरफ से सही। और ये मिसाल के तौर पर लॉगिन है, मिसाल के तौर पर फेसबुक लॉगिन है। अगर आप वो फेसबुक की मिसाल के तौर पर लॉगिन करना चाहते हो तो वो मॉडल, ये मॉडल यूज हो सकता है। and one single central unit which servers coordinate all the other other nodes। इसका मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ एक नोड होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है इन सारों नोड्स को सही, या क्लाइंट्स को। तो अगर आपने नेटवर्किंग सही, कंप्यूटर नेटवर्क्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ा होगा तो क्लाइंट को कंप्यूटर्स को नोड भी कहा जाता है। That's why here the word node is used. Okay, and the system central uh,
code failure causes entire system to fail. So if this server is failed, so the entire system will be failed. For example, if this server is failed, so no one can connect, say, and no one can send request, and so how they will receive the response. Okay, so no connection will be here. So this makes sense because when the server is down, no other entity is there to send, receive for responses or requests. So as I explained to you, now distributed computing. So we have discussed distributed computing in the first and second lecture, I think so. So if you have watched the lectures, so you will understand, but if you don't, so it's okay. I understand you here too. Multiple autonomous computers which are geographically distributed are communicating through message passing. Okay, so multiple autonomous computers मतलब वो मुख्तलिफ computers होते हैं which are geographically distributed. मतलब ये computers होते हैं, सही, और ये मुख्तलिफ places पर होते हैं, सही। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ cities में, और आप मुख्तलिफ ममालिक भी ले सकते हैं, सही, मुख्तलिफ, और ये कम्युनिकेट करते हैं, सही, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, सही, एक को कम्युनिकेशन चैनल पर, और ये मैसेज के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, सही, ये सारे। तो एंड इस चीज को हमने पहले लेक्चर में बहुत तफसील से पढ़ा हुआ है। Now, distributed system components are located on different networks. Computers, जिस तरह हमने बताया, that coordinate their actions by communicating via HTTP protocol. मतलब ये एक ऐसा मतलब चैनल है जिसकी थ्रू ये कंप्यूटर नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट या कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। And characteristics is include independent failure of components and concurrency of components. इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर ये सिस्टम फेल हुआ तो ये सिस्टम काम करेगा, सही। सिमिलरली अगर ये फेल होगा, सही, तो ये तीनों काम करेंगे, या सही, और अगर ये दोनों फेल होंगे तो ये तीनों काम करेंगे, एंड वाइस वर्सा, सही, और ये कंकरेंटली काम करते हैं, सही। मतलब ऐसा कंकरेंटली, और कंकरेंसी को भी हमने बताया है पहले लेक्चरों में। And now, parallel computing. So, is distributed computing of the parallel computing in the very first lecture? I think so. So, yeah, parallel computing refers to the process of breaking down larger problems into smaller parts. Breaking down this larger, uh, yeah, problems into smaller parts. Yeah, these are the smaller parts, and these smaller parts can be executed simultaneously by multiple processors communicating via shared, okay, and these smart can be executed simultaneously, मतलब ये सिमुल्टेनियसली का मतलब है कि ये एक वक्त में प्रोसेस हो सकते हैं मुख्तलिफ प्रोसेसर पर, सही, जो कि इस एक को मेमोरी को शेयर करते हैं, सही। मिसाल के तौर पर यहाँ मुख्तलिफ सी पी यूज़ हैं, सही, ये 4 CPUs है, तो ये सारे प्रोसेस आते हैं यहाँ, और यहाँ मतलब प्रोसेस होते हैं, तो इसी तरह। और इस चीज़ को हमने तफसीलन जिस तरह मैंने बताया कि डिस्कस किया है पहले लेक्चर में। The results of which are combined upon completion is part of an overall algorithm. और ये सारे एक algorithm पर बेस है. The primary goal of primary parallel computing is to increase available computation power for faster application processing and problem solving. किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? फास्टर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए, सही, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। और इस चीज़ को, या दिस इज प्रॉब्लम, एंड दिस आर मतलब this is big problem, and this is break down into smaller pieces, and now these are processed here, okay, which shares similar memory, okay. Now service oriented, okay, these are the new computing paradigms. Those were the um, actual paradigms, core paradigms. These are the core paradigms, okay. And now
this one is the new computing paradigm. So SOA, service oriented architecture, is an architecture in which applications make us services available in the network. मतलब ये हमारी सर्विस को नेटवर्क पर अवेलेबल करता है, सही। जिस तरह सास है, आपने सास आई आई सेस है, सही। ओके, जिस तरह सास है, सास मतलब सॉफ्टवेयर सर्विस या सर्विसेज आर फंक्शन एज अ सर्विस। ओके, जो फेस है, see? इसी तरह फेस भी है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो ये सारे सर्विसेज एक नेटवर्क पर जब आते हैं, सो इट इज अ सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन वेयर द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू अदर कंपनीज थ्रू कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ओवर ए नेटवर्क, सही। तो मैंने एक सिस्टम को बनाया, सही, सिस्टम एक को सिस्टम को अपलोड किया, और ये सिस्टम मिसाल के तौर पर ये डिप्लॉयमेंट, इसको मैंने डिप्लॉय किया, और ये अब वो लोगों को नजर आता है इस सिस्टम के थ्रू, सही, कि हाँ, मंसूर शाहरुख ने एक एप्लीकेशन को बनाया है और अब ये चल रहा है, सही। सो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस कंज्यूमर है, मतलब ये सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस कंज्यूम करता है, लोग भी इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ एज अ प्रोवाइडर, सही। एंड ये या सर्विस की यूजिबिलिटी इसकी एडवांटेज है। एंड या ये इजी मेंटेनेंस है, इजी मेंटेन होता है, अवेलेबल होता है, रिलायबल, स्केलेबल, सही। एंड इन दोनों अवेलेबिलिटी, सही, तो इनको भी हमने पहले लेक्चर में तफसीलन बताया गया है, सही। एंड एप्लीकेशंस आर आर्मीज इन एयरफोर्स, सही। एंड मोबाइल सॉल्यूशन एप्लीकेशन, जिस तरह मैंने बताया कि मोबाइल सॉल्यूशन एक मोबाइल ऐप, सही, वो भी इस सर्विस में आता है। And limitations are high investment required, complex service management. ये जो सर्विस है, complex service management है। And now IoT. IoT is Internet of Things. See, so Internet. What does Internet mean? So Internet is a vast global network of connected servers, computers, tablets, and mobiles that is governed by standard protocol for connected systems. तो अगर किसी ने आपको बताया कि इंटरनेट का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट का मतलब क्या है। तो ये एक नेटवर्क है, इंटरनेट एक नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड सर्वर्स, सही। तो ये मिसाल के तौर पर ये कंप्यूटर्स है, सही, ग्लोब में, सही, पूरे ग्लोब में ये कंप्यूटर्स हैं। और ये मिसाल के तौर पर कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, मोबाइल्स है, और ये एक खास स्टैंडर्ड पर काम करते हैं। स्टैंडर्ड मतलब एक नेटवर्क पर या आईएसपी पर, और ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, सही। ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। मिसाल के तौर पर आपका मोबाइल मेरे मोबाइल से भी कनेक्ट हो सकता है, इसी तरह हम सारे के पास जो मोबाइल है, जो लैपटॉप्स है, जो कंप्यूटर्स है, वो मुख्तलिफ कार्नर्स में है, और वो किस चीज़ के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। एक मोबाइल सिम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, एक नेटवर्क के साथ थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो ये एक नेटवर्क है, सही, ग्लोबल एक जाल है, और इसको इंटरनेट का नाम दिया जाता है, सही। एंड सिमिलरली thing is a word used to prefer a physical object, action or idea। मतलब एक्शन, आइडिया या एक ऑब्जेक्ट को थिंग का नाम, चीज का नाम दिया जाता है। नाउ द इंटरनेट ऑफ थिंग, IoT, is the network of physical objects or things embedded with electronics, software, sensors and connectivity which enables these things to connect, exchange data and create opportunities, economic benefit and reduce human exertions। सिंपल इसका मतलब यही है कि इसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स, अब जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉफ्टवेयर है, सेंसर्स है, या कनेक्टिविटी है, ये कनेक्ट होते हैं, सही। मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट्स है, कोई कंप्यूटर है, सेंसर है, कैमरा है, और कोई दूसरी चीज़ है, ये एक मिसाल के तौर पर एक लिफ्ट है, सही। तो ये सारे मिलकर एक काम करते हैं, सही, मिसाल के तौर पर, और ये आईओटी में आता है। जिस तरह
आप अगर एयरपोर्ट्स में या जो स्मार्ट सिटीज है वहाँ जाए तो जो स्मार्ट सिटीज का कंसेप्ट है यही आईओटी है। सही। तो वहाँ क्या है, एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड रिड्यूस ह्यूमन एक्सर्शन। तो अगर हम लेफ्ट में जाए तो वहाँ ह्यूमन की जो एक्सर्शन है वो रिड्यूस होती है। सी। एंड वाइस वर्सा। Now, for example, a temperature sensor. Now, temperature sensor sends temperature data to a process which determines to the room temperature is too hot and send to turn on air condition. Objects, controller systems, actuator things. Okay, तो इस एग्जाम्पल का मतलब यही है कि ये एक एसी है, इसको इस रूम के टेम्परेचर के थ्रू पता चलता है कि आया मेरे ऑन होना है या नहीं। सही। तो ये इस सेंसिंग को या इस सेंसर्स को इन सारे फैक्टर्स एक सिस्टम बनाता है जिसको आईओटी का नाम दिया जाता है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस चीज पर मुनहसर होता है, ऑब्जेक्ट्स उसमें होते हैं जिस तरह हमने बताया, कंट्रोलर सेंसर। सही। ये कंट्रोलर सेंसर है। सही। और ये एक इंटरनेट से कनेक्ट हुआ होता है। तो ये है आईओटी। सो that's how we discuss. Okay, we discuss about computing paradigms, types of computing paradigms, and similarly the new paradigm system. And this we discuss about the definition and the n types. We discuss about three things, which are okay, computing and yeah, I have to revise here. So yeah, centralized, distributed, and parallel computing. Okay, and similarly, service SOA and IoT. Okay, parallel, centralized. Okay, and the third one is distributed. Okay, similarly, and IoT and SOA. We have discussed these all. So I hope that you will understand these concepts. And if you have any question and any feedback, you can ask me in the comment section and build a community by answering to your questions. And I will also try to answer your questions and feedbacks. Okay. So thank you so much, and must connect with me on these social media platforms. Thank you. Bye bye. Allah Hafiz.